کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ سونامرگ روڈ کو جلد کھولنے سے متعلق ضلع انتظامیہ گاندربل کی کوششوں سے علاقے میں سیاحت سے جڑے افراد میں کافی خوشی پائی جا رہی ہے۔ ان لوگوں کی تاہم مانگ ہے کہ سونامرگ میں ونٹر ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں۔ پیش جاوید بٹ کی یہ رپورٹ۔ کشمیر کو دنیا کی جنت بنانے میں سونامرگ جیسے خوبصورت مقامات کا بے حد اہم رول رہا ہے۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہونے کے باوجود سونامرگ موسم سرما میں لمبے عرصے تک بند رہتا ہے۔ بھاری برف باری اور برفانی تودے گرنے کے خطرے کے پیش نظر یہ سیاحتی مقام بند رہتا ہے۔ سونامرگ میں بڑی تعداد میں لوگ سیاحت سے ہی اپنی روزی روٹی کماتے ہیں۔ علاقہ بند رہنے سے انہیں کافی زیادہ نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ہوٹل مالکان خاص طور پر متاثر ہوتے ہیں۔ اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ سونامرگ کو ہر موسم میں سیاحوں کے لیے کھلا رکھا جائے۔ گگن گیر سے سونامرگ تک زیڈ موڈ ٹنل کا کام آخری مراحل میں ہے۔ سونامرگ روڈ سے بھی رواں برس ریکارڈ مدت میں برف ہٹائی گئی ہے۔ سونامرگ ہوٹلیئرز کے آج بہت بڑی اچھا دن ہے، خوشی کا دن ہے کہ اب سونامرگ اوپن ہو گئی۔ یہاں ہوٹلز جو ہے، دکان شاپ کیپرز جو ہے، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے یہ کہ اٹس دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری کہ 15 فروری کو پہلی بار کہ سونامرگ کو اوپن کیا گیا۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ 2 یا 3 دن میں ایک فیسٹیول ہوگا سونامرگ میں اور سیزن سٹارٹ ہوگا، اور جو گگن گیر میں روکتے ہیں یہ لوگ تو وہ ٹورسٹ ڈائریکٹ سونامرگ میں آئے گا۔ جیسے ہر ایک ٹورسٹ پلیس 12 مہینے کے لیے کھلا رہتا ہے، اسی طرح سونامرگ بھی 12 مہینے کے لیے کھلا رہنا چاہیے، لیکن 12 مہینہ کھلنے کے ساتھ ساتھ یہاں فیسلٹیز بھی ہونی چاہیے، ویسے کہ جیسے ونٹر میں یہاں بہت زیادہ برف ہوتا ہے، سردی ہوتی ہے، جو یہاں کا واٹر سپلائی وہ جام رہتا ہے، وہ فیسلٹی بھی ہونی چاہیے۔ اس مشہور سیاحتی مقام کے بند رہنے سے سیاحوں میں بھی مایوسی پائی جا رہی ہے۔ سیاحوں کو سونامرگ سے 10 کلومیٹر پہلے گگن گیر تک ہی جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ سیاحوں کی بھی یہ پرزور مانگ ہے کہ علاقے کو ہر وقت کھلا رکھنے کے لیے اقدامات کیے جانے چاہیے۔ کشمیر میں ہم 5 جن آئے ہیں اور ہمارا ٹرپ 10 days کا ہے، اور کشمیر از سو بیوٹیفل، اٹس اے ہیون، اور سب کچھ بہت اچھا ہے۔ ٹھنڈ زیادہ ہے لیکن بٹ ہاں اٹس اوکے، دھوپ نکلتی ہے بٹ اچھا ہے سب کچھ، لوگ بہت پیارے ہیں۔ ٹرپ تو بہت اچھا تھا، آئے یہاں تک دیکھے بہت اچھا لگا، لیکن سونامرگ جانے ملتا تو دل خوش ہو جاتا، بہت اچھا لگتا، بہت بڑھیا لگتا ہے۔ یہاں تک آنے کے بعد سونامرگ نہیں جانے مل رہا تو بہت افسوس کی بات ہے۔ ہم لوگ ممبئی سے آئے اسپیشلی، ہم لوگ کے ساتھ کتنے ٹورسٹ والے سب پریشان ہیں، سب یہاں پہ آ کے رک گئے، بولے آگے جانے نہیں مل رہا۔ ریکویسٹ ہے ہم لوگ کی کہ چالو کرنا چاہیے۔ یہاں پہ آ کے معلوم پڑا کہ سونامرگ بند ہے، جانے کو نہیں ملے گا، تو بڑا افسوس ہوا، کیونکہ امید لے کے انسان آتا ہے ممبئی سے سونامرگ یہ ایسا ہے، سونامرگ میں یہ ہے، تو ہمیں پرشاسن سے ونتی ہے کہ وہ جلد سے جلد سونامرگ کے لیے کچھ کرے۔ سونامرگ کو آل ویدر ڈیسٹینیشن بنانے کے منصوبے سے علاقے میں سیاحت سے جڑے افراد میں کافی خوشی دیکھی جا رہی ہے۔ تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ وہ یہ بھی مانگ کر رہے ہیں کہ گلمرگ اور دیگر سیاحتی مقامات کی طرح یہاں ونٹر اسپورٹس، خصوصی فیسٹیولز اور دیگر سرگرمیاں انجام دی جائیں۔ سونامرگ کو 12 مہینے چلانا بڑی بات نہیں ہے، لیکن مشکل بھی ہے، کیونکہ یہاں بیسیکلی ونٹر انٹرٹینمنٹ ہے ہی نہیں۔ یہاں پہ ونٹر گیمز ہونی چاہیے یہاں پہ، تب سونامرگ 12 مہینے برابر چلے گی۔ تو اس کے لیے ہمیں اسکیننگ سائٹس جو ہے ان کو ڈیولپ کرنا ہے، تو ونٹر گیمز کا انتظام کرنا ہے۔ یہاں کے ایڈمنسٹریشن اپیل کر رہے ہیں کہ یہاں بڑے بڑے کیمپ کیے جائے منعقد، جس میں ٹورزم کو بڑھاوا ملے، ٹورسٹ آنا چاہے، کیونکہ ٹورسٹ پارٹ جو ہے یہاں اس سے بزنس بڑھ جاتا ہے، لوگوں کو بزنس ہوگا، لوگوں کو مزدوری ہوگا تو لوگ اچھی طرح سے رہیں۔ یہاں سلیج والے ہیں، گھوڑے والے ہیں، ہوٹل والے ہیں، بائک والے، بہت ویل کوالیفائی جو پڑھے لکھے لڑکے اس وقت ہیں، وہ ٹورزم کے ساتھ ایفیلیٹڈ رہنا چاہتے ہیں۔ امید کی جا سکتی ہے کہ گولڈن میڈو نام سے مشہور اس عالمی شہرت یافتہ سیاحتی مقام میں زیڈ موڈ ٹنل مکمل ہونے سے سیاحت کے شعبے کو کافی زیادہ فروغ ملے گا۔ اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے حکومت کو بھی مزید سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نیوز 18 اردو کے لیے جاوید بٹ کی رپورٹ۔
6 महीनों से उजरतों के बगैर बानिहाल काजीगुंड 4 लेन टनल पर काम करने वाले मकामी मजदूरों ने आज सुबह काम छोड़ हड़ताल शुरू कर दी थी। इंतजामिया और कंपनी की तरफ से उजरतों को जल्द बागजार कराने की यकीन दहानी के बाद आज शाम हड़ताल खत्म की गई है और काम दोबारा शुरू किया गया है। एसडीएम बानिहाल जहीर अब्बास और एसएचओ बानिहाल नईमुल हक मतू ने इलाके का दौरा किया और कंपनी और ठेकेदार के साथ बातचीत के बाद एहतजाजी मजदूरों को दोबारा काम शुरू करने पर राजी किया। जहीर अब्बास ने फ़ोन पर न्यूज़ 18 को बताया कि नवेगा कंपनी का कहना है कि उन्होंने जनवरी 2021 तक तमाम रुकमात ठेकेदार को अदा की हैं। बर्फबारी के बाद पिछले 3 महीने से कुपवाड़ा जमागुंड सड़क मुसलसल बंद पड़ी हुई है। इसकी वजह लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। लोगों का कहना है कि सड़क बंद होने की वजह से खाने पीने की चीज़ों की किल्लत पैदा हो गई है। सड़क राब्ता मुसलसल बंद रहने की वजह से बिजली निज़ाम भी दरहम बरहम होकर रह गया है। इस मामले में ज़ाती मदाखलत की डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा से लोगों ने अपील की है। दर्जा 4 असामियों के लिए होने वाले इम्तिहान में शरीक होने वाले गुरेज के उम्मीदवारों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मौसम सरमा में होने वाले किसी भी इम्तिहान के लिए गुरेज में भी इम्तिहानी मराकज़ कायम किए जाएं। हर साल मौसम सरमा में बांडीपुरा गुरेज सड़क कई माह तक बंद रहती है। ऐसे में ज़्यादातर उम्मीदवार इन इम्तिहानात में शरीक नहीं हो पाते हैं। जो 4th क्लास का इम्तिहान 28 तारीख को होने जा रहा है, उसके लिए बहुत सारी जगहों में जैसे कि श्रीनगर और बांडीपुरा में हमारे सेंटर रखे गए हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारा एग्जाम जो है गुरेज में ही हो जाए। और आला हुकाम से जैसे कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिराज साहब जो है, हम उनसे भी अपील करते हैं कि हमारा जो सेंटर है वो यही गुरेज में हो, क्योंकि यहाँ की आवाम बहुत गरीब है और वो खर्चा बर्दाश्त नहीं कर पाते। जो 4th क्लास फार्म भर दिया है, हम यही चाहते हैं कि उनका एग्जाम यहीं पे हो। और उनका बहुत ही खर्चा लग रहा है। अभी वो जहाज में जा रहे हैं, उनका 2000 ले रहे हैं जहाज से, और वहाँ पे भी डेरे में उनका खर्चा लग रहा है। हम यही चाहते हैं उनका एक सेंटर यहाँ पे खोला। एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर जावेद कौल ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस के पास आइंदा मौसम गर्मा में ट्रैफिक नज़्म नस्क के लिए मुनासिब अफरादी क़ुव्वत है, तहम मौसर ट्रैफिक मैनेजमेंट की ज़रूरत है। श्रीनगर में एसएसपी ने कहा कि लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गलत पार्किंग से गुरेज करें। एसएसपी ने एतराफ़ किया कि श्रीनगर में पार्किंग लॉट्स की कमी से ट्रैफिक का मसला पेश आ रहा है। कौल ने ट्रैफिक बेदारी से मुतल्लिक़ एक प्रोग्राम में शिरकत की। ट्रैफिक डिपार्टमेंट और एक निजी FM रेडियो चैनल ने इस बेदारी का इनकाद किया था। शहर में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स है पार्किंग की और जहाँ जहाँ क्या अवेलेबल स्पेसेस हैं पार्किंग स्पेसेस, उसका एक डिटेल्ड रिपोर्ट बन गया है। मिनट्स हो गई, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्शंस हो गई इशू, और उन डिपार्टमेंट्स ने भी शुरू किया है काम करना उन पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि रात भर एक ही दिन में हो जाएगा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये सारा इशू जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसके अलावा हमारी जो आप कहते हैं टोइंग की बात है, टोइंग में सिर्फ हमारे पास 4 ही क्रेन है। तो 4 क्रेन, नॉर्मली यू नीड ए क्रेन फॉर एवरी रूट, क्योंकि हमारे थोड़ा बहुत डिसिप्लिन में भी थोड़ी कमजोरी है। अगर गाड़ी लगानी है, हमें ये अंदाजा नहीं आता है कि रोड साइड पार्किंग में कहाँ लगाएं, किस डायरेक्शन में लगाएं, किस तरीके से लगाएं। उसके लिए हम इसको डिसिप्लिन करते हैं, हम अनाउंसमेंट करते हैं। 4 क्रेन पूरे शहर के लिए बहुत कम है और टोइंग बहुत कम हो जाती है बिकॉज ऑफ लेसर नंबर ऑफ पीपल। शोपियां के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल केलर में तिब्बी सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों के लोगों को दुश्वारियों का सामना है। लोगों के मुताबिक अस्पताल में जहां दरकार ज़रूरी आलात की कमी है, वहीं तिब्बी अमला भी काफ़ी कम है। लोगों के मुताबिक अस्पताल में सिर्फ एक ही गायनकोलॉजिस्ट है और ऑपरेशन थिएटर भी हफ्ते में 1 दिन ही काम करता है। जब न्यूज़ 18 नुमाइंदे ने इस हवाले से BMO से बात की तो उन्होंने एतराफ़ किया कि तिब्बी अमले की कमी से मसाइल पेश आ रहे हैं। जनाब 35 गांव अंद पक गुजर बकरवाल ज्यादा पहाड़ी एरिया मज बसान। जनाब ये सह नजर क्या फैसिलिटी गरीब लुक 6 रेत नान नबर 6 रेतन जनाब बफ ये 6 फुट शीन मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, पता नहीं वो किस 5 स्टार में बैठे हैं और एंजॉय करते हैं, और लोगों के जो समस्या है उनको पुष्ट रखा गया है। इसके लिए मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ, जो ये हमारा केलर इलाका है, यहाँ के जो भी मसले मसाइल है उनको फुल फोर हल किया जाए। सफाई का फुकदान है कि यहाँ पर एडुकेट स्टाफ 2-4-5 एम्प्लॉई हमको ये स्टाफ कुछ ऐड नहीं हुआ, और बाकी जगह हमको 18 सेंटर्स चलाने हैं, जैसे बर्तीपोरा है, गतिपोरा है, सब सेंटर्स है, NTPACs है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स है, वो रन करने हैं हमको।
हमको स्टाफ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। आज से पहले जो 10 साल पहले स्टाफ था वही स्टाफ आज भी है। ये मैगनाइजेशन नहीं हुई है। पार्किंग की प्रॉब्लम है, यहाँ पर पार्किंग जगह नहीं है, हॉटलाइन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, सोनोलॉजिस्ट नहीं है, अल्ट्रासाउंड है यहाँ पर लेकिन अल्ट्रासोनोग्राफी करने के लिए डॉक्टर साहब सोनोलॉजिस्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। लेडी डॉक्टर्स हमारे पास खाली 2 है। अखनूर में लोगों को तिब्बी सहूलियात का फुकदान है। लोगों का कहना है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर डोरी डगर की नौ तामीर शुदा इमारत कई सालों से बंद पड़ी है। लोगों का कहना है कि उन्हें मामूली इलाज के लिए भी कई किलोमीटर दूर अस्पताल जाना पड़ रहा है। उन्होंने गवर्नर, इंतजामिया और महकमे सेहत के आला अफसरान से इलाके में माकूल तिब्बी सहूलियात की फराहमी की मांग की है। ट्रैकर्स एंड एक्सप्लोरर्स बारामूला और जेके वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने काजी नाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लंबर के लिए एक ट्रैकिंग एक्सपेडिशन का इनकाद किया। 25 नौजवानों ने इसमें हिस्सा लिया। सेंचुरी में नबातात और हैवानात के बारे में जानकारी हासिल करना भी इसका एक अहम मकसद था। मुंतजमीन का कहना था कि ऐसे इक़दाम से नौजवान ज़हनी तनाव से बच सकते हैं और इनकी जिस्मानी नशोनुमा भी होगी। शुरका ने भी इस इवेंट के इनकाद पर खुशी का इजहार किया। टीआरसी ऑडिटोरियम हॉल श्रीनगर में 2 रोज़ा खताती नुमाइश का अहतमाम किया गया। महकमे सेहत और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ने मुश्तरका तौर पर नुमाइश मुनक्किद की। कश्मीरी खतातों की छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करने के मकसद से इस नुमाइश का इनकाद किया गया। डीसी श्रीनगर वकारगुजार डिविजनल कमिश्नर कश्मीर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी और डायरेक्टर टूरिज्म मेहमान खुसूसी थे। बेहतरीन खतातों को नकद इनाम और मोमेंटोज दिए गए। शुरका ने नुमाइश के इनकाद पर मुंतजमीन का शुक्रिया अदा किया। बड़ा इनिशिएटिव है कैलीग्राफी को रिवाइव करने का और इसको प्रमोट करने का। इसका क्रेडिट उन आर्टिस्ट, यंग आर्टिस्ट को जाता है जिन्होंने इसमें पहल की, अपना टाइम स्पेंड करके। और जैसे वर्कशॉप जो ऑर्गेनाइज हुई उसमें उन्होंने बेहतरीन काम किया। और एक अच्छी चीज़ ये है कि जो इसमें आर्ट सीखना चाहते हैं उसमें उन लोगों को ये सिखा रहे हैं। और जो भी वर्कशॉप के दौरान इन्होंने काम किया है वो आज यहाँ डिस्प्ले पे है 2 दिन के एग्जीबिशन के लिए। और विजिटर से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो बाहर से हमारे टूरिस्ट आए हैं वो लोकल रेजिडेंट्स यहाँ पे विज़िट करें, देखें इनका आर्ट, इन बच्चों को अप्रिशिएट करें, इन यंग आर्टिस्ट को। और जो आर्ट यहाँ पे डिस्प्ले पे है इसका हम सेल भी हम कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसकी प्रोसीड सभी आर्टिस्ट को जाएंगी। तो मुझे लगता है ये पहला इनिशिएटिव है कश्मीर में जो इस चीज़ को लेके हुआ है। इवेंट्स होते रहते हैं छोटे छोटे, बट जो लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, जो जिनको वर्कशॉप के लिए आने का मन होता है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बट अभी ये स्मार्ट सिटी ने, डीसी सर ने इनिशिएटिव लिया है। तो इस एग्जीबिशन के थ्रू ये था कि मतलब यहाँ पे ये थोड़ा मतलब इस आर्ट का रिवाइवल हो जाए यहाँ पे, क्योंकि ये आर्ट मतलब ज़्यादा नहीं अब यहाँ पे लोग कर आते हैं। ये जो यहाँ पे आज उन्हें मतलब ये रखा एग्जीबिशन, इसके थ्रू यहाँ पे काफ़ी यंग जो ये है आर्टिस्ट। लेह में EMJ कॉलेज के तलबा का एहतजाज जारी है। तलबा का कहना है कि रिजल्ट अनाउंस करने तक वो धरना ख़त्म नहीं करेंगे। साल 2019 से रिजल्ट पेंडिंग है। हर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहे हैं आजकल। तो फिर स्पेसिफिकली आज ये है कि EGM कॉलेज स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम है उनको हम चंडीगढ़ स्टूडेंट एसोसिएशन हम उनके साथ है। यही कहना चाहते हैं कि हम जो भी स्टेप होगा आगे, जो भी फर्दर स्टेप होगा, हम स्ट्रिक्टली और फर्दर स्टेप लेना होगा और लेंगे भी हम। उनको आगे कोई सपोर्ट्स के लिए कुछ कोई मिलने वाला है नहीं है। तो हम अभी चाहते हैं, अभी इस प्रोटेस्ट के हिसाब से भी चाहते हैं कि वहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक नोडल ऑफिसर रखा जाए और जो हमारे पूरे रिजल्ट्स और वहाँ पे जो कुछ प्रॉब्लम्स हमारे जो लद्दाख के ओर से हो रहा है उनको पूरा क्लियर किया जाए सर। हालिया बर्फबारी के बाद करगिल के सरहदी गांव बडगाम को करगिल से मिलाने वाली 7 किलोमीटर सड़क खोलने में करगिल इंतजामिया की नाकामी के बाद मकामी नौजवानों ने कोशिश करते हुए रास्ता खोल दिया है। करखित एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी ने 3 महीने से चल रहे विंटर कोचिंग क्लासेस की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद की, जिसकी सदारत काउंसलर अल्ताफ हुसैन ने की। डॉक्टर मोहम्मद मुर्तज़ा मेहमान जी वक़ार थे। हमने 150 to 180 स्टूडेंट्स यहाँ पे इनरोल किए। हालांकि एप्लीकेशन बहुत आए और ये एप्लीकेशन रिलीज़ करने के तुरंत विदिन 2 आवर्स हमारे सारे यहाँ पे सीट ऑक्यूपाई हो गए। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट ले
एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट सबको हमने कॉन्फ्रेंस में लेके उनसे सलाह करके उनसे मशवरा करके फिर हमने ये ट्यूशन प्रोसेस शुरू किया। और फर्स्ट डे पे जितने भी बच्चे यहाँ पे थे मैं खुद पर्सनली बैठ के और मेरे 2-3 सहयोगी बैठ के सबका थर्मल स्कैनिंग करना, डिटेल हिस्ट्री लेना और पूरा हेल्थ रिलेटेड फॉर्मेट बनना, ये हमारे लिए बहुत प्राइमरी काम था। जम्मू के अखनूर में बसंत पंचमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। इस जगह की खासियत ये है कि यहाँ पर हर मजहब के लोग जमा होते हैं। बाबा बल्लभ देव जी के इस मरकज पर पहुंचकर कई बीमार सेहतयाब हो जाते हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह, साबिक डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह भी मौजूद थे। मतलब हर आदमी हैरान हो जाता है कि जो यहाँ पे कैसे हो रहा है सब, मतलब सब कुछ कैसे हो सकता है, मतलब अनबिलीवेबल। गाड़ियों की यहाँ 5-5 किलोमीटर की लाइनें लगी होती हैं, 5-5 किलोमीटर दूर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। ये बाबा जी का आशीर्वाद है और कोई लालच नहीं, कोई कुछ नहीं। आप चढ़ाओ ना चढ़ाओ। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 10 साल तक मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि मैं 2 पैसे भी चढ़ा सकूं, और कभी नहीं चढ़ाए। कभी बाबा जी को कोई लालच नहीं, पर बाबा जी ने वही आशीर्वाद देना, वही सब कुछ करना, और जो अनबिलीवेबल थे वो भी बाबा जी ने आशीर्वाद दे के करें। देखिए, हमेशा खुशी होती है जब भी आते हैं, और एक बहुत बड़े संघर्ष से हम लोग गुजर रहे हैं, और हम लोग हमेशा यहाँ दुआ करते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो और उनको मजबूती प्रदान हो और उनको आशीर्वाद हो कि अच्छे से अपना काम, अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाए। और मैं समझता हूँ कि ये आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है। जब भी हम लोग आते हैं और दुआ करते हैं वो कबूल होती है, और यहाँ पर इसी आशीर्वाद के साथ हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी ये आशीर्वाद बना रहेगा, और जम्मू कश्मीर पुलिस और हम लोग जाती तौर पे, इंडिविजुअल तौर पे भी अपने अपने जो मकसद हैं ज़िंदगी के, उनमें सफल होते रहेंगे। सांबा के इमरजेंसी अस्पताल विजयपुर में सहयोग फार्मेसी बंद रहने से लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों का कहना है कि सहयोग में दवाएं सस्ते दामों में मिलती थीं और रात देर भी फार्मेसी खुली रहती थी, लेकिन अब फार्मेसी बंद रहने से लोगों को दुश्वारी पेश आ रही है। तो जहाँ पे लोगों को दवाइयाँ मिलती थी, तो लोगों को एक तो सस्ती दवाई मिलती थी, दूसरा रात को 12 बजे 1 बजे जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम लोगों को आया, इमरजेंसी हॉस्पिटल में लोग आते हैं तो उनको दवाइयाँ मिल सकती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। कहना चाहता हूँ हमारे एलजी से, डीसी साहब हमारे जो सांबा से, उनसे अपील करना चाहते हैं कि इमीडिएटली ये जो मेडिकल शॉप हॉस्पिटल में खोली थी इसको दोबारा खोला जाए। रात को यहाँ पे मेडिसिन की कोई भी प्रबंध नहीं है। मैं प्रशासन से फिर यही अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जहाँ इसको रीओपन किया जाए या इसको किसी को प्राइवेट देके उसका भी रोजी रोटी चले और गरीबों को महंगा करवाई सके। मैंने की है बात वैसे हमने ऊपर भी, तो वो प्रोसेस है। दूसरा हमने इसके जो है अल्टरनेटिव के लिए एक जनौषधि की शॉप की भी बात की है, हमारा वो भी रिक्रूटमेंट हो गई है, फार्मासिस्ट की भी फाइल वो भी लग गई है। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से मावरा पहलगाम में पॉलिथीन मुखालिफ मुहिम जारी है। मावरा में कायम होटलों के अतराफ का मुआयना किया गया और सफाई सुथराई की गई। दरियाए लिदर में गंदगी डालने के मुर्तकिब कई होटलों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जुर्माना भी वसूल किया गया। पीडीए के मुताबिक मुस्तकबिल में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। तराल के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए एक रोजगार मेले का एहतमाम किया गया। ये मेला डिग्री कॉलेज तराल में मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा रघुलंगर मेहमान खुसूसी थे। माहिरीन ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो सरकारी नौकरियों के बजाय अपने यूनिट कायम करें। डीसी ने बताया कि जिले के दूसरे मकामात पर भी ऐसे मेलों का इनेकाद किया जा रहा है। पुंछ में भी एलओसी के करीब वाक़ दरगाह पर हजरत साईं अमरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया गया। अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद ने उर्स में शिरकत की। उलमा ने हजरत की जिंदगी पर रोशनी डाली और खुसूसी दुआ की गई। फायर एंड इमरजेंसी दफ्तर पामपुर में आग बुझाने के हवाले से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम प्लांट में काम कर रहे मुलाजमीन ने शिरकत की। पामपुर में कई गैस प्लांट मौजूद हैं, इसकी वजह से इलाके में हमेशा आग लगने के खतरात लाक रहते हैं। इसी के पेश नज़र ऐसे प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में कोविड के 58 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 46 मरीज सेहतयाब हो गए हैं और उन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया। यूटी में फिलहाल 629 एक्टिव केसेस हैं। गांदरबल के लार ब्लॉक में यूथ मेला मुनक्किद किया गया। इस दौरान खेल कूद की मुख्तलिफ सरगर्मियां मुनक्किद की गईं। कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए गए। इस दौरान मेडिकल कैंप भी मुनक्किद किया गया। कठुआ में हीरानगर तहसीलदार के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। मकामी नौजवानों ने तहसीलदार पर उनके साथ बदसलूकी करने का इल्जाम आयद किया। लोगों ने तहसीलदार का तबादला करने की मांग की।
पूंछ के मेधर में फौज की बसोनी बटालियन की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। स्कूली बच्चों में फौज ने खेलकूद का सामान तकसीम किया। सरहदी इलाके होने की वजह से अक्सर बेशतर इलाके के लोगों को पाकिस्तानी गोलाबारी का सामना रहता है। बच्चों के जहनी दबाव को कम करने और खेलों की तरफ राग़िब करने की गर्ज से इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया गया था। रामबन के दूर दराज इलाके में हाई स्कूल अलनवास के कदीम बिल्डिंग कई अरसा पहले तबाह हो गई थी। महकमे तालीम की गफलत जारी की वजह से आज तक ये इमारत दोबारा तामीर नहीं की जा सकी। आवाम के मुताबिक कई नस्लें इस स्कूल के बिल्डिंग में तालीम हासिल कर चुकी हैं। कई साल काबिल बिल्डिंग को पहुंचे सख्त नुकसान के बाद उसे गैर महफूज करार दिया गया था। इसके बाद एक और नई बिल्डिंग तामीर की गई। तमाम स्कूल की कदीम बिल्डिंग की असर तामीर का काम न होने की वजह से तलबा और तालिबात को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल राजौरी में छत से पानी टपक रहा है। नतीजे में तालिबात को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली इमारत की छत की कई जगहों पर टूट चुकी है और बारिश के दिनों में पूरा पानी क्लासरूम्स के अंदर घुस जाता है। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि मरम्मत के कामों को अंजाम देने के लिए उन्होंने मुतल्लिका एजेंसी को तहरीरी रिपोर्ट दे दी है। उन्होंने बताया कि PWD डिपार्टमेंट स्कूल की इमारत की मरम्मत के लिए रकम दे सकता है, लेकिन महकमा इस मसले पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाने के लिए महकमे तालीम की मुहिम चल रही, तो दूसरी तरफ महकमे की अनदेखी के नतीजे में कई सरकारी स्कूल बिना इमारत के चल रहे हैं। पुंछ में LOC के करीब वाक़ बालाकोट तहसील का स्कूल महकमे तालीम की लापरवाही की मिसाल है। सरकारी स्कूल काला करमाड़ी 7 सालों से बगैर इमारत के चला जा रहा है। स्कूल में ज़ेर तालीम 40 बच्चों को किसी मकान के सामने बैठकर तालीम हासिल करनी पड़ती है। लोगों ने बताया कि साल 2014 में बारिश की वजह से काला करमाड़ी के प्राइमरी स्कूल की इमारत तबाह हो गई थी। तब से अब तक कभी भी इमारत दोबारा तामीर करने की जहमत नहीं की गई है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर संजीवनी का मकसद है यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।